Yes, hi student. Yes, good morning to all of you. And in last class of the SST, I told you I revise all the important topic from the list this lesson because you know very well this chapter is completed, and I sent all the notes from related to this chapter in Google Classroom, but I revise again this chapter randomly because it is very important according to board classes. So let's move on it. Yes, you know the name of this chapter is nationalism in India. So what is the meaning of nationalism? Before we learn about the nationalism, before I learn about the nation. What is the meaning of nation? Nation is a large body of the people inhabiting a particular country or territory and are united by the कॉमन डिसेंट्स, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज. एक लार्ज एरिया में जो लोग रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्री और टेरिटरी कहते हैं. बट दे आर यूनाइटेड. वो किससे जुड़े होते हैं? डिसेंट्स, उनकी अलग कॉमन हिस्ट्री, उनकी कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज से वो जुड़े हुए होते हैं. क्लियर? एंड आई गिव अ एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस. The France is known as a nation because every person of the France speak French, or they have a common history and culture, so it is known as nation. Okay, now what is the meaning of nationalism? A feeling of loyalty and devotion towards the nation is called nationalism. But question is that what lead to the growth of the modern nationalism in India? क्या चीज़ थी या क्या रीज़न थे जिससे नेशनलिज्म की भावना का उदय हुआ? You know very well, India is known as land of diversity according to creed, caste, color, yes, language or rituals. So many type of diversity is there. Okay, so India is known as land of diversity, but the question is that कि what is the common between of them? इन सब के बीच में क्या कॉमन है जो इनको यूनाइटेड करके रखता है? इन सबको डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट के लोग हैं, डिफरेंट उनकी रिचुअल्स और कल्चर है, इवन द जोग्राफिकल फीचर्स है. तो क्या चीज़ हमको जोड़ के रखती? द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनल इज द इंटीमेटली यस कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. यानी कि यस कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हमारा स्ट्रगल है, वो हमें जोड़कर रखता है. तो यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल डिस्कवर देयर यूनिटी एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. यानी कि इस पीरियड में लोगों ने अपनी यूनिटी को और डिस्कवर किया और वो स्ट्रगल किया फॉर द फ्रीडम के लिए. क्लियर? नाउ यस, यू नो कि ऑल वर यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और सभी किसके खिलाफ हो गए? चाहे वो किसी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, कहीं यस किसी भी रीजन से रिलेटेड हो. यस, ऑल आर यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. Yes, their motive is different. Maybe they want, some were wanted the reduce the defense law, reduce the taxes. Yes, some wanted to reduce the defense expenditure, but all are yes against the British rule. So yes, now you know very well, from this lesson we have to learn about the First World War and Khilafat movement. Okay, now you know very well कि महात्मा गांधी yes returned from the South Africa in January 1915. But what was the situation before it? You know very well कि First World War started in July 1914, and in this war, yes, British was also participating in the First World War, or it impacted the India very badly because there was a huge increase of the defense expenditure of British government.
behalf of British government, yes, soldier of our country, they fought in the First World War. So expenditure of the British government is very huge, or there was a huge increase of defense, and all the dues is fulfilled by the financed of the custom duties और increase in taxes. इस सारे एक्सपेंचर को फुलफिल करने के लिए यस ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा कलेक्ट करा? यस, हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लगा के, हमारे टैक्सेस को इंक्रीज़ करके. क्लियर? देन और भी बहुत सारे हमारे ऊपर बहुत सारे यस बाउंडिंग कर दी थी. लाइक वाइज विलेजर को ओपनली उनको स्ट्रगल ऐसे उनको भर्ती किया जा रहा था सेना में फोर्सली. विलेजर वर कॉल्ड अपॉन ऑफ द सप्लाई ऑफ सोल्जर एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी बिकम ए कॉमन थिंग ड्यूरिंग दोज डे. और लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था. और इसके साथ में यू नो वेरी वेल कि हम क्या कहते हैं कि जब मुसीबत आनी होती है ना तो चारों तरफ से आती है. तो यू नो वेरी वेल क्रॉप फेल ड्यूरिंग दिस पीरियड 1918 टू 1919 और 1920 से 1921. और इससे क्या होगा, वो हमारे पूरे कंट्री के सो मैनी यस एरिया में ड्रॉट हो गया था या फेमाइन हो गया था. इसके रिजल्टेड क्या हुआ, हमारे में खाने की कमी होगी. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. ओके, देन तो यस द प्राइस ऑफ अकोमोडिटीज इज़ डबल्ड बिटवीन यस 1913 टू 1919. और इसके कारण हमारे जो डेली यूज़ की चीज़ों का प्राइस एकदम से ड्यूरिंग दिस पीरियड डबल हो गया था. और यस एक और चीज़ हो गई थी यस एनकम्पाइंड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. यानी कि हमारे देश में इन्फ्लुएंजा फैल गया था. एक बीमारी, भयंकर बीमारी फैल गई थी. अकॉर्डिंग टू द 1921 की कहा जाता है कि लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक. इस बीमारी से और अकाल से लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल लोग मारे गए. क्लियर? बट देन यस पीपल होप दैट, फिर भी लोगों में होप थी, कि आशा थी कि पीपल होप दैट कि देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर. ये सब जब ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे टैक्सेस, बढ़ाए हुए टैक्सेस, खाने की कमी, बीमारी का यस ट्रीटमेंट वगैरह, ये सही हो जाएगा. कब हो जाएगा? जब ये वार ख़त्म हो जाएगा. बट दैट डिड नॉट हैपन. बट ऐसा नहीं हुआ. और यू नो वेरी वेल यस इन 1950 यस a musician was come. यस कौन आया? एक म्यूजिशियन आए जिसका नाम था यस द नेम वॉज महात्मा गांधी. यू नो वेरी वेल. क्लियर? देन yes, what is the impact of him? Yes, you know very well at South Africa he had a successful fought the racist regime with the method. और साउथ अफ्रीका में वो पहले से ही सत्याग्रह मेथड ऑफ सत्याग्रह के ऊपर वो सक्सेसफुली बहुत सारे मूवमेंट वहाँ पे लड़ चुके थे रेसिस्ट रिज्म के खिलाफ. और वो बट he felt that कि yes method of satyagraha is very important for the India. So he returned yes in India is January 1915. Okay.